Are you able to see the board, students? Yes, ma'am. Okay, fine. So today we are going to start with this relative frequency approach. Right. Now, what is this relative frequency approach of defining this probability? This is also termed as empirical approach or the statistical definition of this probability. Okay. So I, as discussed in the last class, this definition was introduced by R.V. Massey. R.V. Masses. He introduced this definition in the beginning of the 20th century. Right. So what he told in this definition, let us see. He told, suppose we have the random experiment and we are interested in some event capital C. Right. We have some random experiment and we are interested in finding the probability of occurrence of an event C. C means capital C and will denote, because I told you the events are denoted by capital letters. Right. So let us suppose that let NC, NC means what? Number of elements in the event set C. This denote the number of times the event C has occurred. This denotes number of times event capital C has occurred. Number of times the event C has occurred. This is denoted by NC, right? And when this is occurring, when we are going to repeat the random experiment large number of times independently under identical conditions. We have the random experiment. We are going to repeat that random experiments independently under identical conditions a large number of times. So what is, we have to define that large. So large क्या है? Suppose n times आपने repeat किया है. We are going to repeat the random experiments n times. Instead of one time, we are going to repeat it n times. And we denote how many times the event C has occurred. For example, your random experiment is this tossing of a coin. So instead of one time, suppose you are tossing the coin 100 times, and each time you are going to note the number of times, each time you are going to note the output. Suppose out of 100 times, 60 times head appeared. Which is head. Any random experiment is being repeated n number of times under identical conditions independently. Let C denotes the number of times event C has occurred. Then the probability of occurrence of the event C, which is our problem, ये define करना है. So this he told that we can take this as NC divided by जितने number of times आपने trial किया, and we will take the limit as n tending to infinity, right? And he told that he provided the limit exists, provided the limit exists. He gave this kind of definition. Try to understand it. देखो relative frequency कैसे निकालते हैं? This is the idea for relative frequency, right? This is the total frequency ये हो गया, and how many times the experiment was being repeated. यहाँ पे sample space से work नहीं कर रहे हैं. We are working with the number of times the experiment is being repeated. Out of that, how many times a particular event has occurred? He told we will take this ratio, this is the relative frequency, and we will take the limit as n tending to infinity. Means what will happen if we continue doing this? Yes, Ma'am, your the voice is not clear. voice is not clear. Yes. Let me change the network. Yes, ma'am. Just
Now you check, is it audible? Students? No. Wait. Is it audible now, students? Hello. Ma'am, it's audible but not clear yet. It will come. I have changed the network now. Just try after a few seconds. Board is visible to you? Yes, ma'am. Okay. So now it will work. Discussing this relative frequency approach, what was the concept behind that? Instead of working space, he introduced the concept of relative frequency. Means repeat the random experiment large times independently under identity. So let us suppose that capital N time experiment is being repeated, and we are denoting here NC denotes the number of times has occurred out of capital N, right? Then he told the probability of occurrence of the event C will be given by limit n tending to infinity, this NC divided by N. This is nothing but the relative frequency. And provided this limit exists, if this limit exists, we can take this as the probability. Means that when N is tending to indefinitely large number of times the same experiment, if you are going to, it has been noticed that after particular time it get stabilized, right? It used to get stabilized or wahi aana start ho jata. So that's why based on that idea he introduced this definition of probability. But again in the last class also, people used to see the drawback or the limitation. So people came up with the limitation of this also. कि खराबी है, what is the problem behind that? So one limitation was introduced that कि conducting the experiments number of times may not be possible, right? है ना कि सेम एक्सपेरिमेंट को आपको अंडर सिमिलर आइडेंटिकल कंडीशन यू हैव टू रिपीट इट लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स इंडिपेंडेंटली. तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जहां पर कि एक्सपेरिमेंट को लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना पॉसिबल नहीं हो सकता. तो पीपल केम अप विद एग्जांपल के साथ आए कि अगर हमारा प्रॉब्लम इस तरह का है कि वी नीड टू टेस्ट द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन एडवांस सैटेलाइट. सपोज करो सैटेलाइट बन रहा है, फेल होगा या सक्सेस होगा, तो यू हैव टू लॉन्च इट, ओनली यू कैन डिसाइड. तो अगर प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालने चले, यू हैव टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट्स एन नंबर ऑफ टाइम्स लार्ज, तो लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बनाना पड़ेगा, फिर सबको लॉन्च करना पड़ेगा. तो इतना टाइम एनर्जी एंड मनी इज नॉट देयर. तो इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो दिस repetition of experiments n number of times may not be possible, right? या दूसरा देखना है कि सपोज सम पर्टिकुलर बॉम्ब हैज बीन, तो कोई बम बनाया गया है, तो उसका सक्सेस और फेलियर कि कितना इफेक्टिव है ये, राइट? डिस्ट्रक्टिव फॉर द आर्मी पर्पस हैज बीन मेड, राइट? तो वो कितना इफेक्टिव है तो करना पड़ेगा, कितना इफेक्टिव है कि रेट क्या है इसका पता करने के लिए, तो यू हैव टू एक्सप्लोर दैट बॉम्ब सो मेनी टाइम्स. Conducting such kind of experiment using relative approach to find out the effectiveness of success or failure rate of a particular bomb which is destructive
नॉट एडवाइजेबल एंड इट विल इनकर डिस्ट्रक्शन भी तो होगा, कहीं ना कहीं आप लगाओगे तो इट इज नॉट। सो पीपल केम कि ये जो है एक्सटेंसिव है कि देयर आर मेनी सर्कमस्टांसेस वेयर repetition of an experiment under identical conditions large number of times may not be possible। तो ये आए। और दूसरा फिर लोग लिमिट में नॉट एग्जिस्ट, अगर ही नहीं किया लिमिट में नॉट एग्जिस्ट करेंगे फिर तो ये डेफिनेशन फेल हो गया। came out with कि there may be circumstances where you may encounter with the irrational numbers, ऐसा आ गया √n/n, राइट। ये तो this with this tending to 0 deal with such kind of problem। या अगर इस तरह आ गया कि आपका n-√n/n इरेशनल नंबर आ जाए तो प्रोबेबिलिटी इज नॉट इरेशनल, तो फिर इस तरह की चीजों को कैसे डील किया जाए। सो दीज वर कंसिडर्ड एज सम ऑफ द लिमिटेशंस और द बैक ऑफ दिस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। देन पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं कोई और अप्रोच की जरूरत है कि उससे इतनी सारे ड्रॉ हम लोग नहीं कर सकते। वी वांट अ जनरल काइंड ऑफ डेफिनेशन व्हिच शुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल। ये देखो इतना जल्दी नहीं, कई साल लग गए लोगों को हु आर वर्किंग ऑन दैट, थिंकिंग ऑन दैट, और अभी भी इस पे वर्क चल ही रहा है, राइट। और सेंचुरी में आया था, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब ये सब चीजें इन्वेंट हुई, बहुत पुराना नहीं है। Although probability concept was in the late 17th century, लोगों ने सोचना शुरू किया कि कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। Now research is going on this for the enhancement, for the drawback, उसको कैसे खत्म किया जाए, right? So people searched for the next approach, कुछ हो सकता है जिसमें ये सारी चीजें ना हो। तब तक क्या हो गया था कि पीपल एंटर्ड 90s के दौर में लोग चल गए थे, तभी तक मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी थी तब तक। तो पीपल स्टार्टेड क्लबिंग दैट कि मैथमेटिकल कांसेप्ट्स भी अब तक हमारे पास मिले हैं, उनको लेकर साथ इसको मर्ज करके क्या कुछ कर सकते हैं या नहीं। दिस इज द वे हाउ द रिसर्च मूव्स। तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि जो है ये रिंग फील्ड स्पेस जो आप सब पढ़ चुके हो, ये सारी चीजें डेवलप हो चुकी थी बाय द टाइम पीपल वेयर स्टार्टेड यूजिंग। देन पीपल थॉट जो रिंग फील्ड ये सब का कंसेप्ट है, इसको यूज कर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं दैट इज that should work for all and most of the circumstances, कि ये सारी ड्रॉबैक हो उसमें ना हो। एक ऐसा डेफिनेशन भी दिया गया एंड दैट वाज इन द ईयर 1993। देखो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, 1993 अभी की बात है। एंड ये इट वाज प्रपोज अ रशियन मैथमेटिशियन। एक बार ये ईयर चेक कर, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस वन की, लेकिन इसी टाइम लिखा है कुछ, राइट। और इट वाज प्रपोज्ड बाय क्लोमोग्रोव, होगा आपने कई जगह मिले होंगे ये आपको, क्लोमोग्रोव। इन्होंने ये इन स्टार्टेड थिंकिंग कि ये कुछ होगी, राइट। ये ईयर एक बार चेक कर लेना आप, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि ये यही है या नहीं। आई विल ऑल्सो सी इट, एक बार नेट पे डाल के देखेंगे कि ये क्या आता है। आई एम नॉट ऑल्सो वेरी श्योर अबाउट इट, आई विल ऑल्सो चेक। क्लोमोग्रोव ही वाज अ रशियन मैथमेटिशियन, ही जस्ट इंट्रोड्यूस्ड कि कोई एक ऐसी चीज हो सकती है एंड as axiomatic definition, axiomatic definition, axiomatic approach और axiomatic definition of probability। तो देखो नाम से पता चला कि axiomatic means based on the axioms। जब आपने वो सब पढ़ा है रिंग फील्ड, तो क्या होते हैं उसके होते हैं जो सेटिस्फाई होने होते हैं।
तो उस बेस पे he wanted to define the probability and he and very nicely it is working also that we this before entering into this axiomatic approach or that concept of ring field और ये सारी चीजें, but I will just revise some points that we कि थोड़ा सा आपको याद आ जाए कि वो क्या था, क्योंकि वही सारी चीजें यहाँ पर होगी तो एक फ्रेमवर्क बन जाएगा आपका, राइट। तो आपने पढ़ा होगा रिंग, रिंग सबने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ लिया होगा रिंग। तो ये रिंग क्या था? दीज आर द थिंग्स that will be used, that will be required to define this axiomatic approach of probability. So I am going to define it कि क्या था ये, तो आप जानते हो बट आपको याद आ जाए कि ये ही था, राइट। सो वी सी दैट रिंग अगर डिफाइन करने को कहा जाए तो आप क्या करोगे? तो इसमें क्या करते हैं, वी टेक अ नॉन क्लास, सपोज आर ले लिया, नॉन एम्प्टी क्लास आर और सबसेट्स ऑफ दिस। देखो अब जो कहेंगे हम लोग यहाँ पे जो भी कंसेप्ट है रिंग फील्ड, वी विल डिफाइन इन टर्म्स ऑफ आर सिंबल्स। ये हमारा इटैलिक सी है, मतलब सैंपल स्पेस है, इसके कंटेस्ट में डिफाइन किया जाएगा जो भी चीजें हैं। जो भी चीज डिफाइन करोगे यू विल डिफाइन of this symbols that we require in this paper, right? लेकिन concept वही है, just the way of being changed as per the requirement, right? To define the ring, we can define as a non-empty class R of subsets of this italic C is said to be a ring, if it satisfies the following conditions. The first condition है कि if A and B belongs to this R, this implies that A union B also belongs to R, right? So this is the first condition. दूसरा condition क्या होना चाहिए कि if your A and B belongs to this R, this implies that A minus B belongs to R. So this was the definition. और ये सब चीजें जो है ना डिटेल्ड में हम लोग मेजर थ्योरी होता है उसमें पढ़ते हैं। दिस थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, वहां पे फिर जैसे एल्जेब्रा में पढ़ा है वो सारे थ्योरम्स आते हैं, तो मेजर थ्योरी में ऐसे ही सारे आते हैं, बट वो सब आपके कोर्स में नहीं रखा गया। बाद में अगर आपका इंटरेस्ट आएगा इस फील्ड में तो कभी आप एमएससी वगैरह करते हैं तो उसमें ये पेपर मिलता है, तो वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। हियर टू डू वी आर जस्ट टेकिंग आउट द जरूरत है ताकि ये पिक्चर एक आपके अंदर बन जाए कि ये रिंग क्या चीज। तो नॉन एम्प्टी क्लास आपको लेना है आर, एंड कहाँ से लेना है? फ्रॉम दिस सैंपल स्पेस, दिस स्क्रिप्ट सी या इटैलिक सी, इसको पढ़ते हैं। स्क्रिप्ट सी भी पढ़ सकते हैं, इटैलिक सी भी, जैसे मन करे बुक में देख लेना ये सिंबल। और इफ इट सेटिस्फाई टू कंडीशन क्या होना चाहिए? ये यूनियन के लिए और सच डिफरेंस के लिए। तो इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड वी से दैट आर इज अ रिंग, ठीक है। नेक्स्ट वी रिक्वायर फील्ड। फील्ड क्या होता है? फील्ड, इसको हम लोग एल्जेब्रा भी बोलते हैं। ये सब हम लोग मेजर थ्योरी से ब्राउज कर रहे हैं जितनी जरूरत है। तो यहाँ पे अच्छा, रिंग को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ये थोड़ा सा डिजाइन से आर लिखना है थ्रू आउट द दिस पेपर। सिंबल यू विल एनकाउंटर, यू थिंक दैट ये रिंग ऑफ थिंग, स्टैंडर्ड सिंबल एक नया मिल गया, देखो स्क्रिप्ट, राइट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द फील्ड और द एल्जेब्रा। फील्ड या एल्जेब्रा क्या होता है? तो इट इज डिनोटेड बाय स्क्रिप्ट ए, राइट। तो a non-empty class, this script A of subsets of script C is said to be an algebra or field if conditions are satisfied, और axioms बोल लो, conditions बोल लो कि if A, B this script A, this implies that A union B also belongs to this script A, right? And second condition is
second axiom you can take कि if A belongs to script A, this implies that A complement also belongs to script A. So if these two conditions are satisfied, देखना मैंने यहाँ सिंबल गलत लिख दिया, implies आ गया, यहाँ पे belongs to होगा, ये देखते चलना आप लोग, right? So this will be the ये आपका आ गया this. तो if A B belongs this script A implies that अगर उनका यूनियन भी उसी में हो और कंप्लीमेंटेशन भी उसी में हो, then we say that this A is a field. Right? All these we are taking from the sample space C. Right? Next we will require. अच्छा यहाँ से देखो कि we that कि every algebra मतलब ये field is a ring. This can be proved but entering into the proof क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, बट ये आप मान लो कि ये कंसेप्ट है दैट वी कैन ब्राउज, ये थ्योरम है, मेजर थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पर ये सब डिराइव करना पड़ता है. एवरी एल्जेब्रा, एल्जेब्रा मतलब ये फील्ड कर रहे हैं, फील्ड और एल्जेब्रा इज अ रिंग. बस आपने ये याद रखना है, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है बट पढ़ेंगे तो वहां पे ये सब का दिस थ्योरम्स नीड टू बी डिराइव्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्मा रिंग. सिग्मा रिंग क्या होता है, राइट? इसको शॉर्ट में दिस सिग्मा रिंग है. तो व्हाट इज दिस सिग्मा रिंग? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ दिस सिग्मा रिंग. तो द डेफिनेशन इज नॉन एम्प्टी क्लास. अब इसमें देखो, इसको डिनोट करने के लिए ना स्क्रिप्ट एस का यूज किया गया है, right? A non-empty class script S of subsets of script C is said to be a sigma ring if following conditions are satisfied. तो कंडीशन कि अगर आप दो एलिमेंट लेते हो E F belongs to script S, this implies that E minus F also belongs to your स्क्रिप्ट एस. ये कंडीशन होना चाहिए. दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि फॉर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स en, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स en which we are taking स्क्रिप्ट एस, अगर ये सीक्वेंस इसके अंदर हैं, this will implies that union of n equal to 1 to infinity n En also belongs to this script S. So if these two conditions are satisfied, we say that the ring तो पहले से था, ये S have sigma ring हो जाए. So these axioms you need to take, right? So these are the definitions. तो sigma ring ये हो गया आपका. Next we require the concept of. अच्छा, एक चीज और देख सकते, एक प्रॉपर्टी आती है इसके बाद कि एवरी सिग्मा रिंग इज, तो ये इट कैन बी ऑल्सो प्रूव्ड, थ्योरम है बट वी डोंट टू प्रूव इट ओवर हियर, हमें बस इससे काम चल जाएगा, राइट? सिग्मा रिंग, एवरी सिग्मा रिंग इज रिंग, बट वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज ट्रू. एवरी रिंग मे नॉट बी सिग्मा रिंग क्योंकि कंडीशंस, but every sigma ring is a ring, right? Next we are introducing to sigma field. sigma field, sigma field देखो क्या है sigma field. हाँ बताओ बेटा. मैम ये जो आपने माइनस लिखा है, ये बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू लिखा है या वैसे नॉर्मल लिखा है? कौन सा डिफरेंस है बेटा? these E and F are sets. मैम एक्चुअली जब आपने रिंग लिखा था तो रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बट वहां पे आपने माइनस यूज किया था. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? ये हाँ, वही मैं बात बोल रही हूँ आपको. वो जो आप पढ़ते हो ना, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि अ लिटिल बिट डिफरेंट सिनारियो इज देयर, क्योंकि ये सब चीजें जो है मेजर थ्योरी में आती है. वो वाला जो है वहां पे आप ऑपरेशंस जो यूज करते हो वो अलजेब्राइक ऑपरेशंस you are using, but here we are using defining the things on the
सेट थ्योरेटिक ऑपरेशंस, राइट? समझ आ रही है बात? यहाँ Yes. पे ये नाम वही है, कंसेप्ट वही चीज है, बट इट हैज presented in the form of set theoretic operations. तो इसलिए देखो यहाँ पे यूनियन लिया गया, ये माइनस जो है एलिमेंट्स के माइनस नहीं है, वहां तो होता है सेट से दो एलिमेंट लो, उनका एडिशन भी उसी में आ जाए, ऐसा देखते हैं ना हम लोग, बट हेयर वी आर वर्किंग ऑन द सेट्स, ए और बी जो है सेट्स है, राइट? एंड इफ वी आर टेकिंग दीज टू सेट्स फ्रॉम दिस क्लास ऑफ सेट्स, और ये क्लास कहाँ से लिया गया, ये आपका लिया गया है यहाँ से, जो सैंपल स्पेस है, एंड फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, इट इज बीइंग जनरेटेड बाय द रैंडम एक्सपेरिमेंट. whenever you are performing the random experiment, there are sample space, राइट? और जो स्पेस के बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं, उसके हेल्प से आप ये क्लास बनाते हो आर. इफ दीज क्लास इज सेटिस्फाइंग दीज, basically if you talk in terms of probability, a and b are what, these are events, right? इवेंट्स है तो इवेंट्स कैसे होने चाहिए, वो सेट्स होने चाहिए. तो सेट तो सिंपल, ये सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं है, दिस इज है ना, ये लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया था ना, सेट ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंटेशन. तो ये वो सारे ऑपरेशन है, दीज आर नॉट नॉर्मल योर बाइनरी ऑपरेशंस. इज इट ओके? Yes, ma'am. ओके फाइन. तो इसको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव है, इसलिए बताया ना, मेजर थ्योरी में ये सब आपको मिलेगा, बट हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, वो आपके कोर्स में नहीं है, जितनी जरूरत है वी आर एक्सप्लोइटिंग दैट. तो सिग्मा रिंग ये हो गया. फिर वी आर मूविंग ऑन टू द सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा. सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है, ये हमें देखना है. तो फिर से वही आएंगे, इसको दिस इज डिनोटेड बाय स्क्रिप्ट बी. ये सब देखो स्टैंडर्ड नोटेशन है ना. अब आज के बाद जहां से ये ऐसा मिलेगा, आप समझ लो, आई एम नॉट एबल टू राइट नाइसली, बट आप बुक में देखना और आप अच्छा डिजाइन से लिख सकते हो, बट द मीनिंग इज सेम. ऐसा भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं, राइट? स्क्रिप्ट बी पढ़ते हैं इसको, स्क्रिप्ट बी. अ नॉन एम्प्टी क्लास, a non-empty class, a script B of subsets of a script C, right, is said to be a sigma field. Right? sigma field को आप सिंबल में भी डिनोट कर सकते हो. Just you have to take a non-empty class, a script B of subsets of a script C, right? And it is said to be a sigma field if some conditions are satisfied or some axioms are satisfied. तो क्या क्या वो axioms है? We have to see that कि what are those axioms. So the axioms are, number one is your, if you are taking the set C from this script B, this will implies that C complement also belongs to script B. मतलब इसको लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हो, स्क्रिप्ट बी इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन कंप्लीमेंटेशन, राइट? और सेकेंड पॉइंट इज दैट कि इफ द सीक्वेंस ऑफ सेट्स और इवेंट्स, यू कैन से रादर, सीक्वेंस ऑफ सेट Cn belongs to script B, this implies that union of I is equal to 1 to infinity Ci will also belongs to script B. मतलब इसको कैसे बोलेंगे दूसरे लैंग्वेज में, इफ यू हैव टू टेल कि दिस बी, स्क्रिप्ट बी इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन, राइट? तो क्लोज्ड अंडर कंप्लीमेंटेशन होना चाहिए और क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन होना चाहिए. और फील्ड के लिए क्या था, पहले देखो, फील्ड जब था, ये फील्ड के लिए क्या था, अगर इफ टू एलिमेंट्स आर देयर तो उनका यूनियन भी उसमें होना चाहिए और कंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, राइट? एंड अनदर एडेड वन इज दैट सिग्मा फील्ड होने के लिए क्या चाहिए, ये तो वही है, दिस सीक्वेंस ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट सीक्वेंस ऑफ सेट्स. If sequence of events are belongs to this, then उनका यूनियन, काउंटेबल यूनियन भी उसी में होगा. Then we say that this script B is a sigma field.
तो अच्छा, एक चीज और आती है इसमें, मोनोटोन क्लास. मोनोटोन क्लास, व्हाट इज दिस मोनोटोन क्लास? नॉन एम्प्टी क्लास. इसको देखना, स्क्रिप्ट एम से ऐसे लिखते हैं, सुंदर सा लिखा हुआ है, बुक में देख लेना आप एक बार. एंड यू व्हेन यू आर मेकिंग द नोट्स, थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से लिखना. A non-empty class M of subsets of script C. स्क्रिप्ट सी बोलते ही अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, वहां से सैंपल स्पेस जो बना उसी का कलेक्शन है, वही सेट है ये. So a non-empty class script M of subsets of script C is called monotone class if every monotone sequence Cn belongs to script M, then limit of this Cn for n also belongs to M. ये सब और दोबारा फिर आएगा जब डिटेल में थ्योरम्स कुछ हैं जो प्रूव करने हैं, व्हेन वी विल डिस्कस दैट. तो ये सब दोबारा फिर से मिलेगा जब एज एंड व्हेन रिक्वायर वी विल एक्सप्लोर मोर ऑल दीज थिंग्स, राइट. तो ये सारे टर्म्स है जो हमें यूज करने हैं. So with this we can move on to the axiomatic approach of probability. अब मेन आ रहे हैं डेफिनेशन, यहाँ से अब फिर आगे, और जब थ्योरम डिराइव करेंगे तो वो सब चीजों की और जितनी जरूरत होगी we will take. So next we have axiomatic definition of probability. This is the most important one और यही लास्ट है, और डेफिनेशन नहीं है, यही चल रहा है अभी तक, right? So as I told, this definition was introduced by a Russian mathematician Kolmogorov. So what he told that कि suppose a random experiment with sample space script C is there. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना, तभी तो सैंपल स्पेस जनरेट होगा. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सैंपल स्पेस जनरेट हो गया, एंड ही टोल्ड कि let this script be a sigma field on script C, right? मैं इसको लिख ही देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो. वेट. So he told कि let a random experiment with sample space script C, and let script B be a sigma field on script C, right? He told कि also let P, right? P be a real valued function defined on script B. रियल वैल्यूड फंक्शन है, P एक रियल वैल्यूड फंक्शन है which is defined on script B. We are just introducing the symbol, then I will explain कि what were. तो अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, P be a real valued function defined on B, तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो in terms of symbol? if you want to write, तो P such that script B to R ले लिया, R real numbers, real valued function है ना. तो when this P will attack on this element of applied on the element of this B, it will yield a real number, right? So P be a real valued function defined on script B, that is P such that B to R, then P, ये जो P था, P is said to be a probability set function. Probability set function, और probability function भी बोलते हैं इसको, probability set function बोल लो या probability बोल लो. if क्या, if P satisfies the following three axioms,
अब एक्सियम में आने से पहले थोड़ा सा रिकैपुलेट कि क्या है, सो दैट पिक्चर विल बी क्लियर इन योर माइंड, देन वी विल एंटर इनटू द axiom. So the it is, since this definition is based on the axioms, इसलिए इसका नाम दिया गया axiomatic definition of probability. तो क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया आपने, तो सैंपल स्पेस जनरेट हो गया स्क्रिप्ट सी. बी लिया है आपने, इसका ही नॉन एम्प्टी सबसेट होता है ना, ये नॉन एम्प्टी क्लास वी हैव जनरेटेड फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट सी, राइट, मतलब इवेंट्स का क्लास है ये. तो दिस बी इज अ सिग्मा फील्ड ऑन स्क्रिप्ट सी. सिग्मा फील्ड का डेफिनेशन आपने ऑलरेडी देखा है. ऑल्सो लेट वी आर एज्यूमिंग पी बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन बी. इस पे डिफाइंड है एक रियल वैल्यूड फंक्शन, तो कैसे लिख सकते हो, पी सच दैट बी टू आर रियल वैल्यूड फंक्शन. Then this P is said to be a probability set function. Function तो है, but it will be termed as probability set function if it is going to satisfy the following three axioms. तो क्या क्या axioms है ये आपको याद रखना है, और throughout this paper it will be worked out कि कौन सा axiom लगा रहे हो. अच्छा, ये axiom का order भी change नहीं करना है आपको, ऑल्दो इट इज हैविंग नेम, बट जब आप कोई किसी बुक में देखोगे तो वो सिर्फ कोट कर देते हैं फर्स्ट एक्सियम, सेकंड एक्सियम, थर्ड एक्सियम, मतलब इट इज, मतलब इसका ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है. अदरवाइज ऑल्सो नेम इज ऑल्सो देयर, जिससे आपको पसंद आए उससे लिखना, बट डोंट चेंज द ऑर्डर. एग्जाम में इसका डेफिनेशन भी आता है, राइट. सो फर्स्ट एक्सियम इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल सी belongs to your script B, right. probability P, ये P क्या है, ये P है probability set function. मतलब अभी तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, दिस P इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन जो कहाँ लग रहा है, सिग्मा फील्ड B पे. B में कैसे एलिमेंट्स है, इवेंट्स का कलेक्शन है, इवेंट्स का कलेक्शन है बिकॉज इट इज अ क्लास ऑफ इवेंट्स. तो इसमें इवेंट्स के क्लासेस हैं, बहुत सारे इवेंट्स है इसके अंदर, तो P इसके एलिमेंट्स पे लगेगा, राइट. मतलब कि देखो, अगर आप ऐसे बात करते हो तो कुछ इस तरह की चीज है, कुछ इस तरह की चीज है, ये P फंक्शन है आपका, एंड दिस इज द सिग्मा फील्ड, एंड दिस इज योर सेट ऑफ रियल नंबर्स. नहीं देखते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो रियल नंबर आनी है ना, पहले ही बता दिया था कि द एम इज यू हैव टू एक्सप्रेस द ऑकरेंस एंड द चांस ऑफ ऑकरेंस इन टर्म्स ऑफ अ क्वांटिटेटिव क्वांटिटी. कुछ नंबर में, क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो क्वांटिटी में तो नंबर ही आएगा ना, तो ये रियल नंबर आता है, राइट. तो ये इसमें क्या है, इसमें इवेंट्स है, देखो पहचान लो ठीक से, ये फ्रेमवर्क बनना बहुत जरूरी है. C1, C2, C3 जैसे भी मन के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, बिकॉज इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन कि इवेंट्स आर बीइंग डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. तो इसमें इवेंट्स हैं, ये इवेंट P जब इन एलिमेंट पे लगेगा C1 पे, तो क्या करेगा, एक रियल नंबर प्रोड्यूस करेगा. C2 पे लगेगा तो रियल नंबर. इस तरह से इसके जितने भी एलिमेंट हैं, P will be applied over that, it will yield a real number, right. So first axiom says that the probability of C will be greater than equal to 0 for all C belongs to script B. मतलब ये जो वैल्यू है ये हमेशा either equal to 0 और greater than 0. नेगेटिव की पॉसिबिलिटी नहीं है, right. For any, if you take any C belongs to this. So this axiom is termed as axiom of non-negativity. इससे भी आप यूज कर सकते हो, axiom of non-negativity. This is axiom of non-negativity, right? या फर्स्ट axiom या axiom of non-negativity से ये जाना जाता है. Second axiom is that probability of C is equal to 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, नहीं रुको, सी नहीं, गलत लिख दिया मैंने, दिस इज स्क्रिप्ट सी. सैंपल स्पेस की अगर प्रोबेबिलिटी लेते हो, ये पी जो है सैंपल स्पेस में भी तो लग सकता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो स्क्रिप्ट सी पे जब लगेगा ये, देन इट विल यील्ड इट विल बी इक्वल टू, ये देखो श्योर इवेंट हो गया ना, तो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1. आपने देखा था प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करता है जनरली. तो अगर ये इवेंट सी के जगह स्क्रिप्ट सी ले लिए, तो दिस फंक्शन अप्लाइड ओवर दिस स्क्रिप्ट सी विल यील्ड 1.
तो दिस इज कॉल्ड axiom of certainty. This is called axiom of certainty. This is called axiom of certainty. आपको ऐसे याद रखना. सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी axiom of certainty, right? Third axiom and the last one. Third axiom says that for any sequence events, मतलब ऐसे लिखते हैं ना सीक्वेंस. आपने इवेंट्स का सीक्वेंस है, देखना एलिमेंट्स नहीं है, ये सेट्स का सीक्वेंस है, इवेंट्स का सीक्वेंस है. ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब है, दैट इज मीनिंग देयर बाय CI इंटरसेक्शन CJ अगर आप फाइंड करते हो तो ये इक्वल, दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, देन इट विल बी पेयर वाइज डिसजॉइंट, राइट? ये कहां से लेना है? इन स्क्रिप्ट B, वही. So what use for any sequence Cn of pairwise disjoint has determined that this axiom says that अगर this probability function, वही जो set function है, applied over union of I equal to 1 to infinity Ci will be equal to summation of I equal to 1 to infinity Ci, right? Probability of union of this Ci will be equal to summation of I equal to 1 to infinity Ci, ये हो जाएगा. And this axiom is termed as, इसका क्या नाम है? axiom of countable additivity. countable additivity और सिग्मा एडिटिविटी भी इसको बोलते हैं. axiom of सिग्मा एडिटिविटी बोलो या काउंटेबल एडिटिविटी. axiom of sigma additivity or countable additivity, right? So these are the three axioms that you need to remember, and this will be used throughout the paper, right? तो first axiom is axiom of non negativity, मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी वो. इट विल बी आइदर इक्वल टू 0 और इट विल बी ग्रेटर देन 0, राइट? दूसरा एग्जियम ऑफ सर्टेनिटी, अगर पूरा सैंपल स्पेस ले लो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी. एंड थर्ड इज दैट इफ यू आर गोइंग टू टेक एनी सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेयर वाइज डिसजॉइंट अगर नहीं होगा तो फिर ये हम लोग P को वी विल नॉट बी एबल टू से दिस P एज अ प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन. मतलब इन तीनों एग्जियम को सेटिस्फाई होना चाहिए इफ P हैज टू बी अ प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन. आपको पता ही है आउट ऑफ दीज थ्री, जैसे रिंग फील्ड सब पढ़े हो, उसमें जितने एग्जियम है सारे सेटिस्फाई होना चाहिए. एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर वो दिस एग्जियम्स आर नॉट सेटिस्फाइड, सो इट विल नॉट बी दैट रिंग और फील्ड और जो भी आप प्रूव करते आए हो अब तक. तो यहाँ वही चीज करनी है. देयर यू प्लेड विद द नंबर्स, नाउ यू हैव टू प्ले विद द सेट्स विच आर टर्म्ड एज इवेंट्स. यही डिफरेंस है मेन, राइट? तो उतना ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, बिकॉज दैट इज कैरिड फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ अ मेजर थ्योरी, जो एक पूरा पेपर होता है, फुल पेपर ऑफ ए पर्टिकुलर सेमेस्टर. तो हमें जितनी जरूरत है उतना लेकर के आपको काम चल जाएगा. दैट इज फॉर द हायर स्टडीज, राइट? तो एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी, एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी, और थर्ड इज द एक्सियम ऑफ काउंटेबल एडिटिविटी एंड सिग्मा एडिटिविटी. So whole probability theory, if you will tell, lies on these three axioms. Whole probability theory.
अब जो पढ़ाई हो रही है न्यू, that is lying on this 3 axioms, right? And this probability set function, ये जो probability set function है P, है ना, प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा फंक्शन है जो सेट पे लगता है, इसलिए इसका नाम है प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन। या आपने सेट नहीं बोलना है तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोल लो, राइट? बट सी व्हाट क्लोमोग्रोव डिड, क्लोमोग्रोव इंस्टेड ऑफ defining that this classical approach, relative frequency approach, उन्होंने बिल्कुल अलग अप्रोच दिया and he is telling no, it is a function. He try to express this probability as a real valued function. देखो ये सब इतना आसानी से नहीं आ गया होगा, कितनी बड़ी बात है ये। These are not easily achievable, है ना? आप सब भी कुछ सोच सकते हो, क्लोमोग्राफ भी आपकी तरह ही थे क्लास में जिन्होंने ये बनाया प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, राइट? ही थॉट कि ये फंक्शन के टर्म्स में एस्टेब्लिश किया जाता है, ये कहीं से बना बनाया तो नहीं मिल गया ना, किसी ने बनाया है जो आप पढ़ रहे हो, right? So we should acknowledge it's a very big thing. Our whole probability theory now is based on these axiomatic approach, और बहुत सारे problems जो है इससे solve हो गए, right? So it's a very big thing that Kolmogorov did. He tried to express this probability, that uncertainty, that chance in terms of a function. वो भी कैसा function? Real valued function. तो क्या फंक्शन है, बट ऑल फंक्शन कैनॉट बी अ प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन। तो this will be called as a probability set function. He told कि these 3 axioms are satisfied: axiom of non-negativity, axiom of certainty and axiom of countable additivity. तो जो रियल वैल्यूड फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा that will be termed as probability set function. Whole probability theory is lies on these 3 axioms only now, right? And then another point is that the probability set function tells how the total probability, देखो total probability क्या है? 1, because axiom of certainty को अगर देखो आप तो सैंपल स्पेस पे ये फंक्शन लगता है तो 1 बनता है, राइट? तो what this explains, अगर फिजिकली अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, you will note that the probability set function tells or explains how the total probability 1, total probability तो 1 ही होनी है, how this total probability 1 is being distributed over the sets of events in script B, over the sets of events in script B. B है सिग्मा फील्ड, इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं? इवेंट्स हैं। कहां से मिले हैं? ये सारे सैंपल स्पेस के सबसेट्स हैं। सैंपल स्पेस में क्या है? ऑल पॉसिबिलिटीज। ऑल पॉसिबिलिटीज में से आपने डिफरेंट सेट्स बनाए, जो कल आपको बताया था, इवेंट कहते हैं, ये इवेंट्स का क्लास है। तो डिफरेंट पॉसिबल इवेंट्स में ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन उसी को एक्सप्लेन करता है, राइट? सो दिस टेल्स हाउ द प्रोबेबिलिटी सेट टोटल प्रोबेबिलिटी 1 is being distributed over the different events in script B, right? अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि ये जो पेयर है स्क्रिप्ट सी और स्क्रिप्ट बी, स्क्रिप्ट सी क्या है? सैंपल स्पेस, स्क्रिप्ट बी क्या है? सिग्मा फील्ड। ये दो चीजें हमें चाहिए, तभी आप प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एक्सियोमेटिक अप्रोच, right? So this together is called measurable space. इनका नाम दिया गया है मेजरेबल स्पेस। बताया था ना, मेजर थ्योरी में पूरी डिटेल फुल पेपर है ये इसका। बाद में कभी अगर आपका इंटरेस्ट आया तो पढ़ने का मौका मिला फॉर हायर स्टडीज, देन यू कैन रीड। तो दिस पेयर इज कॉल्ड मेजरेबल स्पेस, राइट? और अगर इसी में आप ये स्क्रिप्ट सी, स्क्रिप्ट बी और ये प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, ये ट्रिपलेट बना दो, ये पी क्या है? यही प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन है। तो इफ यू आर टेकिंग दिस 3 टुगेदर, दिस इज टर्म्ड एज प्रोबेबिलिटी स्पेस। प्रोबेबिलिटी स्पेस इसको बोलते हैं, राइट? सो यू सी दैट P, this P is a set function. सेट फंक्शन नाम है क्योंकि सेट्स पे लग रहा है, हर जगह सेट्स ही सेट्स है,
इस पे लगता है ना, इसका डोमेन क्या है, फंक्शन है तो डोमेन होगा, तो दिस द डोमेन ऑफ दिस P इज दिस स्क्रिप्ट B, राइट। और इसका काउंटर डोमेन, को डोमेन या काउंटर डोमेन जो भी बोल लो, तो वो क्या हो गया काउंटर डोमेन, जस्ट दिस यू कैन सी दैट को डोमेन क्या हो गया तुम्हारा, ये है दिस योर P, द डोमेन इज स्क्रिप्ट B एंड काउंटर डोमेन जो है ये क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब हम लोग थोड़ा सा और उसमें आ गए, इंस्टीड ऑफ R बेटर टू टेल क्लोज इंटरवल 0 1 after reading all those axioms, because you see that कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 से कम हो नहीं सकती है और 1 से ज्यादा हो नहीं सकता है, तो why to write R, right? So now we are going to write this instead of R, ये जो है इसको हटा देते हैं बाद में, आप मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन है R तो है ही है, बट इन वी आर मोर कॉम्पैक्ट, मतलब R यू कैन टेक इट एज अ कोडोमेन, और रेंज जो हो गया वो 0 to 1 हो गया, लेकिन वो वैल्यू जब हमें पता है कि ले ही नहीं सकता है, तो बेटर टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, नाम रियल वैल्यूड फंक्शन ही रहेगा, क्लोज इंटरवल 0 1 आ गया, तो ये R का ही सबसेट है, राइट। सो दिस प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, ये जो है अगर ये दो साथ में है तो दिस बिकम्स अ स्पेस एंड कॉल दिस एज अ मेजरेबल स्पेस, और इसमें अगर P प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन भी लगा दो तो इसका नाम आ जाता है प्रोबेबिलिटी स्पेस, राइट। एंड होल प्रोबेबिलिटी थ्योरी लाइज ऑन दिस, and P this set function is a set function having the domain this B and the counter domain या range बोल लो 0 to 1। Is it okay students, समझ आया सबको axiomatic approach, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So this was a definition introduced. अब ये definition आई तो क्या बाद में फिर क्या करा गया कि some theorems were established related to that these axioms, है ना, ये axioms को यूज करके बहुत सारे theorems बनाए गए जो कि आपके कोर्स में भी है, डेरिवेशन भी करना है और एग्जाम में आएगा भी, राइट। तो वी विल डिस्कस द theorems one by one. So these all the theorems that we are going to discuss are all the consequences of these axiomatic approach or axiomatic definition of probability, right? तो एक थ्योरम है तुम्हारा फर्स्ट थ्योरम 1 2 जो भी नाम देना चाहो दे दो, तो दिस सेज दैट कि फॉर ईच इवेंट फॉर ईच इवेंट कैपिटल C बिलोंग्स टू, कहां से मिलेगा ये स्क्रिप्ट B, राइट। इसलिए मैंने आपको कल ही बता दिया था ना, हर क्लास में कुछ नए सिंबल्स आपको मिल जाएंगे जिनको याद रखना पड़ेगा, तो अगर आप क्लास स्किप करते हो तो फिर जब नई क्लास में आओगे तो फिर नया सिंबल मिलेगा, फिर जान पहचान नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। सो डोंट स्किप क्लासेस, दैट्स व्हाई। तो फॉर ईच इवेंट C बिलोंग्स टू दिस स्क्रिप्ट B, ये क्या है सिग्मा फील्ड है, पहचान लो इसको, ये क्या है इवेंट है, ये कहां से मिला है, दिस इज अ नॉन एम्प्टी क्लास फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट C, स्क्रिप्ट C क्या था सैंपल स्पेस से लिया है, राइट। So for each event capital C belongs to this script B, the theorem is saying कि probability of occurrence of the event C will be equal to 1 minus probability of occurrence of C complement। होता ही है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है ना, C होगा या तो नहीं होगा, होगा तो ये, नहीं होगा तो ये, तो इनका सम 1 है, बट वी नीड टू प्रूव दिस, राइट। तो देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे हम लोग, प्रूफ नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, चलो अच्छा। सो प्रूफ वी नीड टू प्रूव दिस, हाउ वी कैन प्रूव, तो प्रूफ करने के लिए मान लो कि लेट स्क्रिप्ट C स्क्रिप्ट B एंड P be a probability space, प्रोबेबिलिटी स्पेस। देखो अगर इतना लिख दिया ना तो हम लोग वो सब लिखने से बच गए कि सैंपल्स रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, सैंपल स्पेस जनरेट हुआ, सिग्मा फील्ड लिया, देन वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन ऑन दैट, तो ऑल कम्स इन दिस प्रोबेबिलिटी स्पेस, बोलते ही वो सारी चीजें आ गई। सो इंस्टीड ऑफ राइटिंग ऑल दोज इन शॉर्ट यू कैन राइट दिस बी अ प्रोबेबिलिटी स्पेस, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी स्पेस है तो वो सारी चीजें ऑलरेडी तैयार हो गई,
सपोज हो गया वो सारी चीजें। तो देखो आप क्या लिख सकते हो, सी कोई इवेंट है, इफ सी इज ऑकरिंग, या तो सी ऑकर होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो सी, नहीं होगा तो क्या होगा, सी कंप्लीमेंट होगा। इनका यूनियन अगर आप ले लो तो क्या मिलेगा, सी यूनियन सी कंप्लीमेंट, इट विल रिजल्ट इन अ स्क्रिप्ट सी, मतलब क्या है ये, सैंपल स्पेस। इज इट ओके? ठीक है। अब नेक्स्ट Yes, क्या ma'am. कर सकते हो, ये देखो, ओके फाइन, तो दिस यू कैन राइट, व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट, पी है प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन ना, तो फंक्शन बोथ साइड तो अप्लाई कर ही सकते हैं ना। तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वी आर टेकिंग प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन बोथ द साइड्स। तो प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन लगा दो, दोनों साइड लगा रहे हैं, देयर इज नो अलजेब्राइक फैलेसी ओवर हियर इन अप्लाइंग दिस प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन बोथ द साइड्स, राइट। तो ये लगा दिया हमने प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन, देयर इज नो हार्म। अब देखो यहाँ पे इसको देखना, ये क्या है, एक इवेंट, ये क्या है, दूसरा इवेंट, इन दोनों का यूनियन है, राइट। तो अब क्या कर सकते हो, यू नो दैट, यू नो द थर्ड एक्सियम, थर्ड एक्सियम को देखना, अभी 2-4 बार यूज करोगे ना सब याद हो जाएगी आपको क्या है। तो ये कहता था कि जितने भी हैं उनका यूनियन लोगे ना, तो अगर p प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन है तो वो समेशन हो जाएगा। This was the axiom of countable additivity या sigma additivity, right? So in our case, applying the same concept over here, you see that we have two events, infinity के जगह हमारे पास दो ही है। If we have two events, तो क्या कर सकते हो आप, you apply this axiom of sigma additivity over here। p probability set function है ना, तो ऐसा लिख दिया आपने, ये प्रोबेबिलिटी स्पेस है, मतलब p प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन है तो वो 3 एक्सियम अपने पॉकेट में लेके चल रहा है, वो जहां जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे, राइट। तो ये देखो p is a probability set function, so 3 axiom are coming with this probability, so here we can apply the third axiom। थर्ड एक्सियम यहाँ लगाओगे तो अप्लाइंग द थर्ड एक्सियम, दैट इज द एक्सियम ऑफ सिग्मा एडिटिविटी, या एक्सियम ऑफ एडिटिविटी भी कहा जाता है इसको, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंप्लीमेंट। अच्छा एक चीज यहाँ देखना, कुछ मिस तो नहीं हो गया, जस्ट अच्छा यहाँ देखो एक चीज मिस हो गया है, देयर इज अ करेक्शन। ये प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन इस पे लगेगा ना, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सी आई लिख दिया है, ये सी आई नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आई है। just you remember this is nothing but probability of ci, right? तो ये टाइपिंग में रह गया था ये, सो यू जस्ट सी लाइक दिस कि अगर ये यूनियन है तो ये समेशन में ब्रेक हो जाएगा, एंड दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आई इंस्टीड ऑफ सी आई, राइट। तो अप्लाइंग इट ओवर हेयर, तो इसको अप्लाई कर दिया तो n इंफिनिटी की जगह हमारे पास 2 इवेंट्स है, सो यूनियन विल बी कन्वर्टेड इनटू समेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c कंप्लीमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। और यहाँ लिखना पड़ेगा applying axiom of additivity, सिग्मा एडिटिविटी भी आप बोल सकते हो इसको, बट दीज आर एक्सियम ऑफ एडिटिविटी, राइट। सो फ्रॉम हेयर व्हाट यू कैन, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करोगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंप्लीमेंट भी ठीक है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्रिप्ट सी, ये 1 हो जाएगा ना, हाउ इट विल बी 1, बाय एक्सियम 2। देखो सेकंड एक्सियम क्या था, एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्रिप्ट सी इज 1, और वहां जो आपने पी लिया है वो प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन है, सेट फंक्शन है मतलब ये 3 एक्सियम उसके पास है। तो अप्लाइंग एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी वी कैन राइट इट ओवर हेयर कि ये वैल्यू 1 हो गई, यहाँ लिख सकते हो बाय एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी, बाय एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी। तो यहाँ से अब देखो थ्योरम आपका प्रूफ हो गया, फ्रॉम हेयर वी कैन राइट probability of c equal to 1 minus probability of c complete. So this is the thing that we require to prove, right? तो ये आपको याद रखना है और आप इसको यूज कर सकते हो। So this was the first theorem, and this was as a consequence of axiomatic definition of probability.
नेक्स्ट थ्योरम इज दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, याद आता होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इम्पॉसिबल इवेंट है ना, मतलब जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है बट वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. आई गिव द एग्जांपल कि द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, तो आउटकम्स यू नो विल बी आइदर हेड और अ टेल, बट वी वांट नो साइमल्टेनियसली आई वांट हेड एज वेल एज टेल. तो क्या है, इवेंट बनाना है, जीरो इम्पॉसिबल इवेंट इट विल बी, राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट is 0, right. That is, in terms of a symbol we can write probability of impossible event को 5 से डिनोट किया था, तो ये जो है वो 0 आता है. तो चलो प्रूफ करते हैं इसको. प्रूफ, हाउ वी कैन प्रूव इट. तो प्रूफ देखो, जो जो थ्योरम प्रूफ हो गया वी कैन यूज दैट ऑल्सो इन प्रूविंग द अदर थ्योरम्स. उसको सारा थ्योरम्स है, सो इट कैन बी यूज्ड. तो अभी आपने प्रूफ किया है ना, वी नो दैट what do we know, probability of C is equal to 1 minus probability of C complement. अभी प्रूफ किया था हमने, right. Of what we are going, this is well known because this is a theorem and it is being proved just now. Now here if we take, अच्छा इसको कुछ नंबर दे दो, let it be equation number 1. So if C equal to, C क्या है, इवेंट है, कहाँ से मिला है, सिग्मा फील्ड से, स्क्रिप्ट बी से, तो उसमें सारे इवेंट्स है, सारे इवेंट है, तो वहां पे फाइव भी तो प्रेजेंट होगा. देखना ये फाइव लिखने में कई बार ये ऐसा लिख जा रहा है, कई बार ये ऐसा लिखा है, एक टाइप का लिखो इम्पॉसिबल इवेंट, राइट. सो इफ दिस C इज इक्वल टू 5, तो C इक्वल टू 5 लेते हो 1 में, इन दिस C इक्वल टू 5 लोगे तो क्या इंप्लाई करेगा, ऐसे देखो, C कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, C 5 लोगे तो C कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, बताओ. सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस, वेरी गुड. तो ये हो गया स्क्रिप्ट C. अब क्या करना है, इफ दिस इक्वल टू 5 then this implies, so in the light of this your equation 1 implies. So what your equation 1 will say, C के जगह पे 5 पुट कर दो and this will be equal to 1 minus probability of script C. So this will be equal to 1 minus, ये क्या होता है, axiom of certainty लगा दो यहाँ पे, तो 1 आ गया, है ना. लिख दो by axiom of, कहीं किसी किसी बुक में यहाँ लिखा रहेगा बाय सेकंड एक्सियम, बिकॉज इट इज वेल नोन सेकंड एक्सियम, बट इंस्टीड इट इज बेटर टू राइट सर्टेनिटी, एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी, राइट. तो ये क्या आ गया, 0 आ गया. तो देयरफॉर यू सी दैट जो टेक्निकली पॉसिबल है, मतलब हेड और टेल दोनों साइमल्टेनियसली आ नहीं सकता है, फिर भी मुझे जानना है प्रोबेबिलिटी क्या है, तो लो 0 प्रोबेबिलिटी है. So this is theoretically proved also, right. So this was another theorem as a consequence of axiomatic definition of probability. Next theorem we have, next theorem कि for any finite collection of, for any finite collection ले लो C1 C2 डॉट डॉट डॉट, फाइनाइट लेना है ना तो Cn तक लेंगे, of pairwise disjoint sets या इवेंट्स, कहां से मिलेगा ये disjoint sets, इन किसके पॉकेट में, ये सारे सिग्मा फील्ड. फॉर एनी फाइनाइट कलेक्शन C1 C2 डॉट 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 Cn, ये सारे क्या इवेंट्स है, सेट्स है, नंबर्स नहीं है ये, डोंट कंफ्यूज, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट मेनी टाइम्स, सो दैट फ्रेमवर्क of this paper will be set in your mind. यहाँ हमें सब कुछ सेट्स के साथ करना है, right. So for any finite collection C1 C2 dot 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 Cn of pairwise disjoint sets in script B, right. So what is this, the theorem says that probability of union of I equal to 1 to n Ci will be equal to summation of I equal to 1 to n probability of Ci, right. इसको हम लोग ये भी बोलते हैं थ्योरम ऑफ फाइनाइट एडिटिविटी. देखो दिस रिजेंबल्स विद द थर्ड एक्सियम. थर्ड एक्सियम में क्या था, थर्ड एक्सियम देखो,
third axiom was your yes, axiom of countable additivity. So this was what? For any sequence Cn of pairwise disjoint sets, उसका ये मतलब है in script B this condition is there. तो ये क्या है? Count this becomes infinity over here, but the same is being true for finite thing also. So this can be proved. So for any finite collection, that's why we are naming. Instead of infinity, it is n. So whether that holds for that also or not. लेकिन ये pair wise disjoint होना चाहिए, तभी ये बात बनेगी, otherwise नहीं. So let us see how we can prove this. तो चलो प्रूफ करते हैं इसको. ये सबका प्रूफ एग्जाम में आता है. या देखो ये क्वेश्चन ना अगर ऐसे ना पूछा जाए तो इट इज स्टेटेड इन अनदर फॉर्म ऑल्सो. और ये थ्योरम ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन या प्रोबेबिलिटी दोनों चलता है. फंक्शन इज फाइनाइटली एडिटिव. ये थ्योरम मीनिंग देयर बाय दिस, राइट. सो दिस दीज आर आई एम एज बिकॉज कि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन मिले तो आपके लिए वो नया क्या है. सो ऑल पॉसिबिलिटीज आई एम एक्सप्लोरिंग ओवर हियर. चलो इसको प्रूव करते हैं. प्रूव कैसे कर सकते हो? वी एज्यूम कि लेट वी आर टेकिंग Cn plus 1. लेट Cn plus 1 Cn तक है ना आपके पास. देखो कैसे करेंगे इसको. वी यू हैव finite collection C1 C2 dot Cn, right? We assume that कि let Cn plus 1 equal to Cn plus 2 equal to dot ये सारे जो है चलता चला जा equal to जो है ये phi है, right? We assume let this in कहाँ पे? third axiom means axiom of countable additivity. axiom of countable. अच्छा वो लिखना मत भूलना कि स्क्रिप्ट तुम्हारा ये स्क्रिप्ट सी और पी इज अ प्रोबेबिलिटी स्पेस. ये लिखा था ना यहाँ पे. जैसे ये लिखने से एज इट इज आ जाती है दिस एज. तो वो सारा सपोज हो गया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट वाज देयर, सैंपल स्पेस वाज क्रिएटेड and the set of events हो गया and p is the probability set function. तो ये अगर लिख देते हो let this be a probability space. तो ये तो उसमें आ गई, राइट. तो p आपके पास है, तो थर्ड एक्सियम भी है. तो इन द थर्ड एक्सियम तो आपके पास है Cn plus 1 Cn plus 2 सबको फाई ले लो. कहाँ पे? इन थर्ड एक्सियम मीन्स एक्सियम ऑफ एडिटिविटी. एक्सियम एडिटिविटी में ले लो तो क्या होगा ये? देन यू विल सी दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा? यूनियन I इक्वल टू 1 to infinity था ना, तो वी आर ब्रेकिंग इट इनटू टू. ऐसे लिखो थोड़ा सा इसको, ऐसे n तक एक साथ लिख दिया Ci और यूनियन फाई. I इक्वल टू 1 to infinity था, राइट. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यूनियन ऑफ टू सेट्स लिख सकते हैं. n तक एक साथ ले लिया और n plus 1 n plus 2 ऑन है, वो आपने फाई एज्यूम कर लिया है सारे इवेंट्स, तो वो लिख दिया. तो ये सारा ऑल टुगेदर इंफिनिटी तक हो गया. सो दिस यू कैन राइट. अब आपको क्या लिख सकते हो आप? दिस थर्ड एक्सियम अगर अप्लाई करो दिस विल बी I इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस Ci होगा प्लस नेक्स्ट पे लगाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, फिर नेक्स्ट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई. इतने भी है वो चलता चला जाएगा ऐसा ही, प्लस डॉट 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 डॉट, राइट. ये Cn चला जाएगा. तो यूनियन इज कन्वर्टेड इनटू दिस समेशन. अब नेक्स्ट क्या लगाओगे आप इसमें?
कि नेक्स्ट यू नो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेट कि किसी भी सेट का आप अगर यूनियन लेते हो दिस एम्प्टी सेट के साथ तो वो सेट खुद हो जाता है. तो यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू ये सी आई एंड हियर दिस साइड यू हैव टू अप्लाई द दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इक्वल टू 0. अभी प्रूफ किया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. जस्ट आई विल शो यू. ये देखो just now prove the theorem, so now we can use it कि impossible event की होती है, so we use that. ये सारा zero है तो we are left with this I equal to 1 to n probability of Ci. यहाँ पे लिख दो कि probability of phi equal to 0. So this proves your axiom ये theorem की probability set function is finitely right, और वहां था countably right. So this way the theorem is proved. Next we have one related to the consequence of this axiomatic approach. The theorem says that कि एक तो ऐसा आ सकता है कि the probability set function is सेट फंक्शन का नाम भी दे दो p. ये मोनोटोन फंक्शन ऐसे ही सिर्फ आ जाए प्रूफ करने के राइट. द प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन इज अ मोनोटोन फंक्शन. या इसी को लैंग्वेज में इन टर्म्स ऑफ सिंबल इट कैन बी आस्क्ड कि if C1 and C2 are events such that अच्छा ऐसे ना लिख के इसको C1 and C2 events है पता ही है. C1 C2 belongs to script B such that C1 is a subset of C2 is a subset of C2. then ये जो मोनो दिखाना है तो कैसे प्रूफ करेंगे कि then probability of C1 will be less or equal to probability of C2 right. So that if it may be the question may be asked like this or the same question. इसका यही मतलब है कि प्रूफ probability set function is a monotone function. monotone function का मतलब दो एलिमेंट लोगे एक उसका सबसेट है तो probability function में ये रिलेशन होल्ड करेगा राइट. prove this also. let us prove this कि this is a monotone. तो प्रूफ करो. तो प्रूफ कैसे कर सकते हो इसको देखो. एक थोड़ा सा हमने एक वेन डायग्राम देते हैं आपको याद आता होगा दिस वेन डायग्राम लॉन्ग बैक यू हैव रेड है ना. वेन डायग्राम मतलब क्या सेट थ्योरी में यूज होता है ये चीज. तो सपोज आपके पास है दो टू C1 सबसेट ऑफ C2 ऐसा बनाना है कि C1 C2 है. ये हो गया आपका सैंपल स्पेस राइट. C1 सबसेट ऑफ C2 बनाना है तो कैसे बनाएगा. ये कुछ इस तरह का बनेगा. हो गया तुम्हारा C1 और ये हो गया सॉरी नॉट दिस वन. दिस बिकम C1 and this becomes C2. C1 subset of C2 है ना. C1 is in the pocket C2 right. so from this diagram just what you can write. C2 को देखो ऐसा लिख सकते हैं C2 equal to यूनियन C1 ले लिया और ये सारा ये चाहिए this part then it will become C2. तो इसको क्या लिख सकते हो. this can as C2 minus C1. देखो तो ऐसा लिख सकते हो from the Venn diagram. this we are writing from Venn diagram. बताओ can this students can we write like this or Yes ma'am. okay fine. so you agree that we can write like this from the Venn diagram. ये C1 C2 minus C1 क्या
C2 में से C1 का जो पार्ट है तो बच गया, तो व्हाट इज द लेफ्ट आउट, ये साइड वाली लेफ्ट आउट आ जाएगी, साइड वाली ये लेफ्ट आउट को और C1 को मिला लिया, तो we can write using like this. Now what we have to take probability set function both the sides, so there is no harm, we can taking probability set function both the sides. So next probability of C2 will be equal to probability of C1 and C2 minus C1, बस probability set function और कुछ नहीं किया। अब देखो यहाँ पर क्या है, C1 union C2, तो take this, treat this as 1 and treat this as 2, तो probability जब यूनियन पे लगता है तो थर्ड एक्सियम से क्या बनाता है, बनाएगा ना, समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। For applying that axiom you need to very sure that these two are disjoint, right? ब्लाइंडली नहीं लगा है, जहां यूनियन देखा नेक्स्ट स्टेप में उसको समेशन, ऐसा नहीं, पहले आपको टेस्ट करना है कि these two sets be disjoint। तो देखो वेन डायग्राम से C1 और डिसजॉइंट है कि नहीं, देखो C1 ये है और C2 C1 क्या आएगा, ये वाली चीज आएगी, ये वाली पार्ट सेटेड पार्ट, तो यू सी दैट दे आर डिसजॉइंट, है ना, तो ये सो थर्ड एक्सियम विल बी एप्लीकेबल। सो थर्ड एक्सियम व्हाट यू कैन राइट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 माइनस C1। आप यहाँ लिख दोगे कि सिंस C1 एंड C2 minus C1 are disjoint, so applying, because this disjointness was condition to apply this axiom of countable activity। थर्ड एक्सियम भी लिख सकते हो, harm in that। So right next, तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 तो यही है और इसको इधर ले चलते हैं, तो C1 आ गया एंड दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 माइनस C1, ऐसा लिख सकते हो। साइड कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। नाउ इन द कैन राइट, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, व्हाट अबाउट दिस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सम, कुछ भी होगा हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा इतना पता है 0 होगा। कैन वी राइट लाइक दिस, हाउ, बिकॉज ऑफ द एक्सियम। देखो वापस लेके आपको दिखाते हैं, फर्स्ट था, फर्स्ट एक्सियम वाज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज एनी इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस वो जो है सिग्मा फील्ड में होना चाहिए। तो एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी। सो अप्लाइंग दिस, P प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन है, तो वी कैन अप्लाई दैट एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी एंड वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ दैट, क्या लिख सकते हो, इसको ग्रेटर देन 0 लिख सकते हो ना, यहाँ क्या लिखोगे, एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी, या ऐसे लिख सकते हो C2 माइनस C1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाय एक्सियम ऑफ नॉन नेगेटिविटी। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, C2 माइनस C1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 जो है जरूर छोटा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 से, होगा कि नहीं, इज इट ओके? यस मैम। Yes, ma'am. और ये कब, हाँ, तो ये कब मिला, whenever you have chosen कि that is whenever you have chosen कि C1 is a subset of C2, that is ये कब मिला, जब C1 आपने subset of C2 लिया था, तो ये this implies that probability of C1 is less or equal to probability of C2, so this implies that P, ये P जो है, P is this your monotone function, P is a monotone function, so this proves the theorem। तो ये सब भी आता है एग्जाम में कई बार। नेक्स्ट थ्योरम वी हैव, नेक्स्ट थ्योरम
as a consequence. So next theorem states that for any event C, कहाँ से मिलेगा C? Script B से. We need to prove that 0 less or equal to probability of C less or equal to 1. ये जो कहते हैं ना probability किसी event की 0 से 1 के बीच में lie करेगी, right? So we need to prove this. कैसे proof होगा ये, चलो देखते हैं how it will be proved. तो देखो आप प्रूफ लिख सकते हो ऐसा, आप सिंस देखो फाई सबसेट ऑफ सी, सबसेट ऑफ स्क्रिप्ट सी है कि नहीं? ठीक, वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट. बताओ यस अब क्या करना है नेक्स्ट में? मैम. हाँ, तो इन द नेक्स्ट व्हाट वी डू, अप्लाइंग प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन सब पे लगा देते हैं. तो देखो यहाँ से यही वाला जो ऊपर थ्योरम प्रूफ किया है ना, उसी को यूज करेंगे पार्ट्स में. तो देखो C1 सबसेट ऑफ C2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 सबसेट ऑफ लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 होता है. तो यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट में फाई सबसेट ऑफ C है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई विल बी लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C. अप्लाइंग दिस थ्योरम ओवर these two. Similarly, now we are concentrating on the last two. C is a subset of script C, तो यहाँ भी वही बात हो गई. This तो प्रोबेबिलिटी में ऐसा रिलेशन होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C will be less or equal to प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्रिप्ट C. We can write like this. कैसे लिखा? तो आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो. सिंस C1 सबसेट ऑफ C2 होता है, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, राइट? तो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ना फाई, तो 0 होता है, आपने प्रूफ किया है, यूज कर लो. लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज लेस और इक्वल टू, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्रिप्ट C, ये सिंपल स्पेस है, तो एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी से ये क्या हो जाएगा 1 ना. यूजिंग आप लिख सकते हो बाय एक्सियम ऑफ सर्टेनिटी एंड इम्पॉसिबल इवेंट का तो 0 होता ही है, थ्योरम आपने प्रूफ किया. तो देखो कितना ये जो भी चीजें पहले वेग थी, मतलब लोग क्लासिकल डेफिनेशन और ये बता रहे थे, ही केम अप विथ दिस, क्लोमोप्रोफ केम अप विथ दीज काइंड्स ऑफ प्रूफ. सबका मैथमेटिकल एविडेंस के साथ उन्होंने चीजों को अपने हिसाब से इस तरह से प्रेजेंट किया, इस तरह से डेवलप किया, एंड ही प्रेजेंटेड लाइक दिस, राइट? यू सी theoretically it was established कि ये जो होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. he came up with this kind of proof. तो this was a really a very big achievement. इतना आसान नहीं रहा होगा. you can imagine that कि कोई चीजें आई तो उसके consequence से निकलता चला गया चीजें, right? So this people were not able to point out the any limitation for this axiomatic approach. कुछ कोई बोल ही नहीं पाया, पर अभी भी यही अप्रोच जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. समटाइम्स वी यूज दिस क्लासिकल डेफिनेशन ऑल्सो, लेकिन उसमें जो जो चीजें थी ना, सबका प्रूफ उन्होंने कंपेटेबिलिटी जो है ये दिस एक्सियोमेटिक अप्रोच में आ गई, और ये मैथमेटिकल प्रूफ भी था हर चीजों का, तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाया. इट वाज अ बिग, वेरी बिग अचीवमेंट फॉर दिस फील्ड ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट? He came up with the mathematical logic for everything. So this was another theorem. Next theorem is also very important. That is termed as addition rule के नाम से जाना जाता है. Addition rule. This is the addition rule. क्या है? Addition rule says that कि for any events C1 and C2 belongs to script B. For any event, कैसा है, डिसजॉइंट है कि नहीं वो सब नहीं कह रहे हैं, वो हमें पता नहीं है, राइट? फॉर एनी इवेंट इट कैन बी डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, वो उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है अभी. बस कोई सा 2 इवेंट है, स्क्रिप्ट बी में है लेकिन, है ना? दिस एडिशन रूल सेज दैट फॉर एनी इवेंट C1 and C2 belongs to script B, this probability set function applying over C1 union C2
इस पे अगर अप्लाई किया जाएगा, सो दिस विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। यही अगर C1 और C2 डिसजॉइंट होता तो थर्ड एक्सियम से ये डिसजॉइंट होता तो ऐसे भी 0 हो जाता ना, इंटरसेक्शन नहीं है तभी तो डिसजॉइंट है। तो ये देखो सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है जो उन्होंने प्रूफ की, नो नथिंग इज कंट्राडिक्टिंग टू दैट, राइट। तो दिस इज टर्म्ड एज एडिशन रूल एंड many times you have to apply this for solving the problems, right? So let us prove this addition rule. Let us prove this addition rule. तो एडिशन रूल में क्या कहा गया था कि अब इसमें भी देखो हमें ना वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिकॉज टू अंडरस्टैंड दिस सेट थ्योरेटिक ऑपरेशंस। तो सबसेट नहीं है, इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ये C1 ले लिया, C2 ले लिया, राइट। सो दिस C1 एंड C2 आर देयर। इंटरसेक्शन करा दिया हमने, क्योंकि अगर आप डिसजॉइंट रख लोगे तो फिर तो बात बन नहीं पाएगी ना, दैट इज अ स्पेशल केस, बट इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी आर एज्यूमिंग कि ये ऐसा है, राइट। तो यहां से देखो आप क्या लिख सकते हो, C1 यूनियन C2 को क्या लिख सकते हो, देखो C1 यूनियन C2 को अगर ऐसा लिख दें, C1 यूनियन, और C2 को लिख सकते हो आप ऐसा, देखो C1 का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C2। देखो फ्रॉम द वेन डायग्राम, दिस आई एम टेलिंग फ्रॉम द वेन डायग्राम, देखो ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम द वेन डायग्राम, दिस C1 यूनियन C2 को C1 एज इट इज रहा, C2 को लिखना चाहते हैं C1 कंप्लीमेंट, तो C1 कंप्लीमेंट लोगे तो क्या आ गया, ये सारा पार्ट आ गया, C1 को छोड़ के सारा कुछ, ये सारा आ गया ना, C1 को छोड़ के ये सारा सारा, राइट। और उसका इंटरसेक्शन C2 के साथ, और ये वाला पार्ट जो है वो C1 के अंदर तो है ही है ना, राइट। तो ये वाला पार्ट भी आ गया, तो C1 यूनियन C2 सारा बन गया। देखो इज इट ओके और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we can write C1 union C2 like this, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको कुछ नंबर दे दो, लेट इट बी नंबर 1, C1 यूनियन C2 जो लिखा, ठीक है, ये काम आएगा बाद में भी, इसको होल्ड करते हैं। C2 को देखो तो क्या लिख सकते हो, C2 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग C1 इंटरसेक्शन C2, ये पार्ट लिख दिया, C1 इंटरसेक्शन C2, उसका यूनियन आप लिखना चाहो, ये पार्ट लिखना है, तो दिस यू कैन राइट एज C1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C2, कैन वी राइट लाइक दिस, C1 intersection C2 this part, and this part is C1 complement intersection C2, we can write like this, let it be equation number 2, right। अब क्या करना है, इन दोनों जो इक्वेशंस है, इन बोथ ऑफ दीज वी विल अप्लाई द प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन। अच्छा वो स्टार्टिंग में सब में लिख देना कि जो है आपका स्क्रिप्ट C, B और P जो है वो प्रोबेबिलिटी स्पेस है, लेट दिस बी प्रोबेबिलिटी स्पेस, प्रोबेबिलिटी स्पेस, ये बोलने से वो सारी चीजें आ गई। सिंबल्स क्योंकि यूज कर सकते हो, एक्सियम्स यूज करोगे तो P तो होना ही चाहिए, although it is already understood, but to avoid any confusion you can write in the beginning कि let this be a probability space, right। तो C1 union C2 को ऐसा लिख दिया। Now in the next step we want to apply the probability set function both the sides, apply the probability set function both the sides to this equation 1 as well as equation 2। तो 1 में देखो लगाते हैं, तो 1 में लगाते हो तो क्या लिख सकते हो, ये 1 बन जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यूनियन C2 और विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जरा देखना है यहाँ पे, ये देखो C1 और C1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C2 आर दे डिसजॉइंट और नॉट, ये दोनों के बारे में क्या है, ये डिसजॉइंट है कि नहीं, C1 एंड C1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन C2 आर दे डिसजॉइंट, ये दोनों सेट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ। तो डिसजॉइंट अगर है
तो इन पे प्रोबेबिलिटी लगाओगे यूनियन पे तो क्या होगा, समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय थर्ड एक्सियम बिकॉज दे आर डिसजॉइंट, कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड। तो वही यूज करना चाह रहे हैं यहाँ। तो फ्रॉम दैट वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 प्लस लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 complement intersection C2 and this you will write कि since C1 intersection C1 complement intersection C2 equal to 5 मतलब disjoint हो गया। So third axiom, so applying थर्ड एग्जाम एक ही बार, मतलब आई हैव स्किप्ड here one step, एक बार दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी सेट फंक्शन लगाना चाहिए था, नेक्स्ट ऐसा करना चाहिए था। टाइम खत्म होने वाला है, कंप्लीट करना है, इसलिए आप जब लिखना तो एक लाइन और लिख लेना है। यू आर स्मार्ट एनफ, वो आप कर सकते हैं। अप्लाइंग क्या लिख दिया मैंने, अप्लाइंग थर्ड एक्सियम और एक्सियम ऑफ काउंटेबल एडिटिविटी, जो मन करे लिखो। सो बाय थर्ड एक्सियम or axiom of countable additivity, any you can write that you want, right? So next step what we have to do, ये लगा दिया है इस पे, तो इक्वेशन नंबर 1 2 था, let it be 3. Now applying the probability set function in both the sides to this equation. 2 पे देखो, 2 पे लगाना चाहते हैं both side, तो चेक करो पहले यहाँ भी क्या वैसी बात बन रही है। ये फर्स्ट सेट C1 इंटरसेक्शन C2 और C1 complement intersection C2. What about these? Are these two disjoint or not? देखो disjoint है दोनों। Yes, ma'am. Yes, they are disjoint. So they are fulfilling the condition for third axiom. तो यहाँ भी मैं एक स्टेप स्किप कर रही हूँ, आप अपना लगा लेना। तो probability of C2 will be equal to, directly I am writing it over here, C1 intersection C2 plus probability of C1 complement intersection C2. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ही क्यों लिया ये प्रूव करने के लिए, राइट? बिकॉज हियर वी हैव टू थिंक द लॉजिक हमारे पास क्या है कि हमें ये प्रूव करना है ना। हाउ आई थॉट कि वी आई हैव टू प्रोसीड लाइक दिस, ये भी आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये इसलिए सोचा गया कि बिकॉज वी हैव द एक्सियम 3 दैट इज द एक्सियम ऑफ काउंटेबल एडिटिविटी, तो वो तभी एप्लीकेबल होता है जब आप उसको डिसजॉइंट सेट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सको तब। और आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में यूनियन है और इधर हमें समेशन तो कुछ चाहिए, राइट? सो आवर आइडिया वाज कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू एक्सप्रेस दिस एज अ यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स। तो उसी लॉजिक को लेके आगे बढ़े और इसलिए वेन डायग्राम का हेल्प लेके हमने इसको ऐसा इस फॉर्म में लिखा, राइट? सो हियर ऑल्सो सिमिलर थिंग कि आप लिख सकते हो C1 intersection C2 and C1 complement intersection C2 are disjoint. So by third axiom we have like this, right? अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। देख रहे हो ये दोनों में कॉमन है ना, करने क्या वाले हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे, शायद हमारा काम बन जाए, राइट? सो वी टेक आउट, वी एक्सप्रेस C1 complement intersection C2 को लिख सकते हो आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2, और ये इधर चला जाएगा ना, माइनस देखते चलना प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, साइड चेंज कर दिया और कुछ नहीं, राइट? और इसका कुछ नंबर दे दिया है 4, राइट? नाउ यूजिंग दिस 4 को यूज करना है 3 में, देखो यहाँ पे है ना, तो यूजिंग 4 in 3 we get, what do we get, let us see. तो 4 को 3 में यूज करो, नया शीट क्यों नहीं आ रहा है, फुल हो गया क्या? चलो एनीवे इट इज नॉट रेडी। तो देखो 4 on 3 यहीं पे रख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 यूनियन C2 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 तो पहले से था, probability of C1 was there, and in place of this we will write, क्या लिख सकते हो, प्लस
probability of this C2, probability of C2 or minus probability of C1 intersection C2. तो यही तो प्रूफ करना था. दिस वॉज योर थ्योरम ऑफ मीन्स एडिशन रूल. इसका नाम दे दिया गया एडिशन रूल. Why we are telling addition rule? Because this in set theory union resembles addition. तो union rule नहीं कहा गया इसको, इसका नाम दिया गया है addition rule. तो when this is being proved, देखो यही प्रूफ करना था ना थ्योरम का स्टेटमेंट में. देखो आप यही प्रूफ करना था आगे. तो whenever we don't have any idea कि C1 और C2 कैसा है तो एडिशन रूल लग के ऐसा होगा. लेकिन जब आइडिया हो जाएगा कि C1 और C2 म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट है तो यानी उनका इंटरसेक्शन 5 होगा. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 0 होता है, तो इसलिए सिर्फ ये थर्ड एक्सियम आ जाएगा आपका. देखो, बट इन जनरल इफ यू वांट टू राइट, यू हैव टू राइट लाइक दिस. तो आज यहाँ तक रखते हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड फ्रॉम हियर ओनली. So now I will take attendance and stop sharing the screen now.